Present continuous tense. So in this part we are going to understand the present continuous tense. Now read this part. I am waiting for a bus. Some other people are also waiting for it. We are all standing in a queue. There is a hawker also. What is the hawker selling? Is he selling nuts? No, he is selling newspaper. In the passage given above, the words printed in bold letters are in present continuous tense. So dear students, here we have to understand words which are written in the bold letter, these are the part of the present continuous tense. यानी कि जो वर्ड्स लिखे गए हैं बोल्ड लेटर्स में वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिनोट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो पार्ट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है. Why? Because we use the fourth form of the verb in the present continuous tense, and we can say we use ing form. Along with this, we use helping verb is-mr. So that's why these sentences are part of present continuous tense. G part, G point, present continuous tense form. Affirmative sentence is-mr plus ing form of verb. Like I am playing, we are playing, you are playing, he, she, it is playing, they are playing. So here we have to understand the helping verb means like the formation of the present continuous tense is subject, then either is or are or am plus fourth form of the verb, and we can say ing form of the verb. Then we have to put the object, right? यानी कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. टेंसेस में सभी रूल्स सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बताएगा हमें कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. देन वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वी कैन से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, right? And now we have to understand which helping verb will be used with the what subject, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. So there is a very simple rule, like M is fixed with I. Whenever I subject is there and we have to choose any one helping verb, so in that case we need to use their am helping verb. With the I we need to use am, right? Secondly, with the third person singular, we should use is helping verb. Third person singular means like he, she, it, or any one name. He, she, it, or any noun which is singular. So with them we need to use is-mr helping verb, is helping verb. And with the rest of subject we need to use are helping verb. यानी कि हमें I के साथ am helping verb यूज करनी है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें ही यानी कि ही शी इट के साथ हमें इज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. बाकी सभी सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट हो हमारा, आई ही शी इट को छोड़ के हमें आर यूज करना होता है. एंड मेन वर्ब हमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, right? Then negative sentence, not is inserted after the first part of the verb, means where we write the helping verb, so after the helping verb we need to put the note, we need to insert the note. Why? Because that sentence is negative. So for making the negative sentence there is a mandatory there is a condition, we have to put the note, and note will come after the helping verb before the main verb, right? So we need to say in this way, I am not playing, you are not playing, he is not playing, right? So interrogative sentence, the first part of verb is put before the subject. Whenever we need to make questions, like we are going to ask any questions, so in that condition we have to put the helping verb before the subject, so that we can show that, we can declare that we are asking something. जब कभी हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, बोलते हैं, ताकि हम डिक्लेयर कर पाए, सामने वाले को बता पाए कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं. लाइक इज ही प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, वेयर आर दे प्लेइंग, राइट? शॉर्ट फॉर्म्स, एम नॉट, I am not, are not, aren't not, is not, isn't not, am I not, it's also called aren't I. So these short form we have discussed already. Now let's come on the H part, present continuous tense uses.
Dear students, here we have to understand what thing we should see that and we should use the present continuous tense. लाइक हमें क्या देखें कि सेंटेंस के अंदर, और तब हमें पता लग जाए कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बनेगा, यानी कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है. The present continuous tense denote an action taking place at the time of speaking. It means whenever we are doing any action at the time of speaking. So for that action, we should use the present continuous tense. Simply we can understand, जब हम कुछ बोल रहे हो और उस समय कोई हम काम कर रहे हो, तो उस काम के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जैसे मैं कहता हूं इट इज रेनिंग नाउ, अभी बरसात हो रही है, मैं अभी के बारे में बता रहा हूं, वो काम प्रोसेस में है, वो चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज रेनिंग नाउ, अब बरसात हो रही है. राइट. तो बोलते समय जो काम चल रहा हो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. क्लियर. Next point, it means that it started raining a short while ago. It is raining at the present moment, but so and it will continue remain for a while. On the timeline, we can represent the present continuous tense as we shown below. तो हमें यहाँ पे समझ लेना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसे टेंस की, ऐसे सेंटेंस की, ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो टेम्परेरी हो. जिस समय हम कोई बात बोल रहे हैं उस समय वो एक्शन चल रहा है, उससे पहले वो शुरू हुआ और थोड़े टाइम बाद वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देयर इज ए टाइमलाइन. ये एक टाइमलाइन है. यहाँ पे देखो, पी का मतलब है प्रेजेंट, जब हम कोई बात बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है. जो ये डार्क की लाइन की हुई है, यहाँ का मतलब है कि कोई एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बोलते समय वो एक्शन गोइंग ऑन है, और कुछ समय बाद वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो उस एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब बरसात हो रही है, अब बरसात हो रही है का मतलब ये है कि वो जब बरसात होने का काम शुरू हुआ वो उस अब से पहले ही शुरू हुआ, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ, और आगे जाके फ्यूचर में थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाएगा, यानी कि वो टेम्परेरी है. तो यानी कि कोई एक्शन अभी बोलते समय गोइंग ऑन हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. राइट. नेक्स्ट, no adverb of time is needed with this tense, though we may sometimes use words like now, at present, at this moment to suggest that action is taking place at the time of speaking. हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए किसी भी एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती उसको शो करने के लिए, बट फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करके जो सेंटेंस में यूज होते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वो जो बात है वो ऐसे एक्शन की बात है जो अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है, और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा. लाइक नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट. So these are the words by which we can understand we are talking about the present continuous tense. Clear? Next, it is used to denote a temporary action which may not be necessarily happening at a time speaking. So, dear students, we have to understand here the second thing. Sometime it happens that work is not going on at present. At the moment we are speaking, that work is not going on, that action is not going on. Despite it, we say those sentences in the present continuous tense. And how? Like here, I want to make you understand. कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ एक्शंस जब हम बात कर रहे हो, जब हम बोल रहे हो, जब हम बता रहे हो, उस समय नहीं चल रहे होते, एग्जैक्टली उस समय नहीं चल रहे होते, बट उस समय के दौरान चल रहे होते हैं. जैसे मैं कहता हूं कि इन दिनों मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, तो जिसको मैं बात बता रहा हूं हो सकता है कि एट प्रेजेंट में नहीं तैयारी कर रहा हूं, हालांकि मैं उन दिनों के आसपास कर रहा हूं. तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस जो बोलते समय नहीं कर रहे हो आप कोई काम, परंतु उस समय के दौरान कर रहे हो, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जैसे मैं कहता हूं कि इन दिनों मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, या मैं बोलता हूं कि इन दिनों मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो किसी को कहता हूं कि इन दिनों मैं एक बुक लिख रहा हूं. तो अभी जब मैं बोल रहा हूं ये बात, वो बुक मैं अभी भी नहीं लिख रहा हूं, बट उस समय के दौरान लिख रहा हूं. तो ऐसे एक्शन जो टेम्परेरी हैं, बोलते समय नहीं चल रहे, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. Expression like these days, nowadays may be used in sentences like this. So इस तरह के words हम use करते हैं इस तरह के expression को show करने के लिए. Point number 3, it is also used to denote an action about to take place in the near future. I am meeting him tomorrow. We are playing a friendly match next week. So here we have to understand third condition.
कि ऐसे एक्शन जो बिल्कुल नियर वाले फ्यूचर में, पास वाले फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं मुझे इवनिंग में किससे मिलना है, अपने फ्रेंड से मिलना है, तो मैं वहां बोल सकता हूं आज शाम को मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, राइट। तो हमें ये समझना है कि जो नियर फ्यूचर हो, यानी कि पास में आने वाला को फ्यूचर हो, उसके लिए भी हम ये टेंस यूज कर सकते हैं। लाइक आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलने जा रहा हूं, या मैं कल उससे मिल रहा हूं। वी आर प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक फ्रेंडली मैच खेलेंगे, या नेक्स्ट वीक हम मैच फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं। सो फॉर द near future actions we can use the present continuous tense. This form is used to suggest a definite arrangement in the near future. The time almost always given tomorrow, next week. For more detail refer to the chapter 9 I think. Yes, so हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये जो हम एक्शन यूज करते हैं, इस तरह की जो बात यूज करते हैं जो नियर फ्यूचर में होने वाली हो, वो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, यानी कि वो निश्चित होता है कि वो ऐसा पक्का होगा ही, हम पक्का वैसा करेंगे, राइट। और उसका टाइम ऑलमोस्ट वहां पे दिया होता है नियर फ्यूचर को शो करने के लिए। Present continuous tense form, like formation we have understood, is mr plus ing form of the verb is mr, that if sentence is negative we need to add not, and then ing form of the verb uses action taking place now at the time of speaking, and second temporary actions which may not be necessarily happening at the time of speaking, third action about to take place in the near future. So everything we have understood, तीन बातों के लिए हम present continuous tense use करते हैं। फर्स्ट, कोई एक्शन अभी हो रहा हो और तब हम कोई बात बोल रहे हैं, उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सेकंड, कोई एक्शन बोलते समय नहीं हो रहा परंतु उस समय के दौरान हो रहा है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नियर फ्यूचर के लिए जो हमें हमारे प्लानिड एक्शंस होते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। According to this, dear students, you need to fill exercise number 5. Fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets in the present continuous tense. So according to present continuous tense, you need to fill these this exercise. So like first sentence is that the home team dash well in tournament. The home team is playing well in the tournament. So according to tense, you need to fill helping verb and main verb. So you should do this exercise. Simple present or present continuous. Here we have to understand what are the differences between simple present or present continuous tense. The simple present tense expresses the habitual action. The present continuous express an action taking place at time of speaking. तो सिंपल प्रेजेंट continuous टेंस एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हैबिचुअल हो, जो हमारे हैबिट को शो करते हैं, और प्रेजेंट continuous टेंस ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो बोलते समय हो रहे हो, जो टेम्परेरी हो। Like the teacher corrects our work every day, habitual और repeated action है, यानी कि ये एक्शन जो है हैबिचुअल है, रिपीटेड है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स जो है हमारे रेगुलर हर रोज हमारा वर्क को ठीक करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तो उनकी हैबिट है, ये रिपीटेड एक्शन है जो बार बार करते हैं। द टीचर इज करेक्टिंग आवर वर्क नाउ, वर्क गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो एक ऐसे वर्क की बात कर रहे हैं जो अभी बोलते समय चल रहा है, गोइंग ऑन है, राइट। तो दोनों में ये फर्क है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसके अंदर वो एक्शन टेम्परेरी होता है, वो कुछ समय के लिए वैलिड होता है, जो चल रहा होता है। और जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जिसमें हम ये शो करते हैं कि कोई पर्सन कोई काम हर रोज करता है या अक्सर करता है। With a simple present tense, we use words like always, never, often, sometimes, every day, etc. With the present continuous tense, we use words like today, etc. So इस तरह के words use करते हैं different different tenses में, जिससे हमें ये show होता है, ये पता लगता है कि हम कौन से tense की बात कर रहे हैं। Does it usually rain here in June? Simple present. It is raining heavily today. Present continuous. दोनों ही बातें अलग अलग tense को represent कर रही हैं। Simple present tense, present continuous, habitual action, general statement, action taking place at the time of speaking. Is all the things we have already discussed. Verb not normally used in the present continuous tense. So dear student, this is the most important part of the present continuous tense. So please understand it very carefully. The following verbs are normally used in a simple present tense and not in the present continuous tense.
जिन वर्ब्स की हम बात करने वाले हैं वो वर्ब्स बेसिकली हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं, बट हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती, यानी कि उसके साथ हम इस तरह के एक्शंस को नहीं शो कर सकते जो टेम्परेरी हो, गोइंग ऑन हो, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म वाले टेंस के साथ हम उसको नहीं यूज कर सकते। लाइक वर्ब्स ऑफ सेंसेस, जो हमारे सेंस को शो करने वाली वर्ब्स होती हैं, जैसे हियर सुनना, सी देखना, स्मेल कोई गंध छोड़ना, टेस्ट कोई स्वाद होना। लाइक कुनैन टेस्ट इज बीटर, नॉट कुनैन इज टेस्टिंग बीटर। जो कुनैन का टेस्ट होता है वो बीटर होता है। तो ये जो वर्ब्स हैं हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, इनको हम आईएनजी फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। I hear that you have resigned your job and not I am hearing. So हम I hear बोल सकते हैं, I am hearing नहीं बोल सकते, यानी कि इन जो verbs को hear, see, smell, taste, इनको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो आगे डिस्कस करेंगे। वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ऐसी वर्ब्स जो फीलिंग को शो करती हैं, इमोशंस को शो करती हैं, जैसे फील, वॉन्ट, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, फियर, लव, हेट, केयर, विश, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दीज ऑल द वर्ब्स। अब सभी वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनको बेसिकली हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते। लाइक आई वांट अ न्यू पेन एंड नॉट आई एम वांटिंग अ न्यू पेन। हम ये कह सकते हैं कि आई वांट अ न्यू पेन, ये कहना गलत होगा, आई एम वांटिंग अ न्यू पेन, बिकॉज verbs of feelings and emotions we can't use in the present continuous tense. Verbs of mental states and activity, like agree, disagree, believe, disbelieve, differ, doubt, find, forget, imagine, know, mean, recollect, remember, suppose, think, trust, understanding, etc. So these verbs also we can't use in the present continuous tense. I doubt he will come, not I am doubting. I think we should not go, not I am thinking. Verb showing possession, belong, own, possess. These house belongs to me and not this house is belonging to me. तो इन verbs को भी हम present continuous tense में नहीं use कर सकते। Verbs like seem, appear, cost, consist, contain, resemble. So these verbs also we can't use in the present continuous tense. This book contains pictures and not this book is containing picture. The circle cost 3,000 rupees and note the circle is costing 3,000 rupees. Note that all the verb listed above may be described as a non-action verbs. Since they do not denote an action, they can't be used in continuous tense. This point is very important. If you understand this point, you will know what is the conclusion why we can't use these verbs in the present continuous tense or any continuous tense, either that's present continuous or past continuous or future continuous. Why we can't use these verbs? So conclusion is written here. So please try to understand this. So we have to understand this. These are the known action verbs. And now we have to understand what are the known action verbs, right? तो हमें ये समझना है कि नॉन एक्शन वर्ब्स क्यों है ये, और नॉन एक्शन वर्ब ये तो हमें समझ में आ गया कि उनके लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं करते, राइट? तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे काम जिनमें हमारी इंटेंशन से हम वो नहीं करते, ऐसे काम जिसमें हम कुछ काम नहीं करते इंटेंशन से, वो डेलिबरेटली होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, वो अपने आप होते हैं। तो वो जो एक्शन होते हैं, वो जो वर्ब्स होती हैं, उनमें एक्शन की क्वालिटीज नहीं होती, एट्रीब्यूट्स नहीं होते। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको। दो वर्ड्स हैं हियर एंड लिसन, हियर एंड लिसन। तो एच ई ए आर हियर, सेकेंड वर्ड है एल आई एस टी एन, लिसन। तो दोनों ही वर्ड का मीनिंग होता है सुनना, राइट? जो हियर होता है ना, उसका मीनिंग होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी की बात को सुन लेते हैं, हमने इंटेंशनली नहीं सुने उनकी बात को, हमने जानबूझकर नहीं सुना उनकी बात को, वो बात हमारे कानों में अपने आप पड़ गई, वो बोल रहे थे और हम जा रहे थे और हमें सुनाई दे गया। तो जब कभी कोई ऐसा एक्शन जिसमें हम कोई एक्शन नहीं करते, इंटेंशनली कोई एक्शन नहीं करते,
तो वो जो एक्शंस होते हैं, वो जो वर्ब्स होती हैं, वो नॉन एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। अब लिसन जो है, वो लिसन का मतलब होता है कोई अपने आप जानबूझकर किसी चीज को सुनना। दोनों का मीनिंग सुनना होता है, हियर का मीनिंग भी और लिसन का मीनिंग भी। परंतु डिफरेंस ये है, हियर का मीनिंग सुनना, बट नॉन एक्शन के साथ, यानी कि अपनी इच्छा के साथ नहीं, अचानक सुन लेना, बिना इच्छा के सुन लेना, अपनी मर्जी से नहीं, जानबूझकर नहीं। परंतु लिसन का मतलब होता है इंटेंशन के साथ सुनना। तो जब हियर को यूज करेंगे तो उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगाएंगे। जब लिसन को यूज करें, जब हम आईएनजी वाली फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि उसके साथ इंटेंशन हम ऐड करते हैं। तो पॉइंट समझ में आया कि जब हम किसी काम को बिना अपने चाहे वो काम हो जाता है, उसमें एक्शन नहीं होता, तो वो जो एक्शंस होते हैं, वो जो वर्ब्स होती हैं, वो कहलाती है नॉन एक्शन वर्ब्स। और ऐसे काम जिसमें हम इंटेंशन के साथ कुछ करते हैं, तो उसमें एक्शन होता है, जानबूझकर करते हैं तो उसमें एक्शन होता है, क्रिया होती है। तो उनको हम नॉन एक्शन वर्ब्स नहीं बोलते, और वो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, राइट। दीज ऑल आर द नॉन एक्शन वर्ब। देखो एक और वर्ड आपसे, एक और वर्ड से समझाता हूं मैं आपको। जैसे एक वर्ड है हैव। हैव का मीनिंग होता है पास में कुछ होना, और हैव का मीनिंग खाना पीना लेना भी होता है, यानी कि टेक भी होता है, ईट भी होता है। तो जब हैव को हम अधिकार शो करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कार है, तो मैं वो बोल सकता हूं आई हैव ए कार, राइट। मैं कहता हूं कि मेरे दो भाई हैं, तो बोलता हूं आई हैव टू ब्रदर्स। तो वहां पे मैं एक बिलोंग शो कर रहा हूं, मतलब उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। तो दो भाई हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हुए, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं कर रहा हूं। परंतु जैसे मैं कुछ खाना खा रहा हूं, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, तो तब मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग वाटर। तो मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरी इंटेंशन है, अपने आप कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं वो काम। आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग फूड, तो तब मैं हैव को वहां पे यूज कर सकता हूं, राइट। तो you these all the verbs are non action verbs, that's why non action verbs can't be used in the continuous tense, that's why we can't use them in the continuous tense. Now k point, see, look, hear, listen. See and hear are non action verbs, while look and listen are action verbs. See and hear do not involve any intention of performing any actions, but looking and listening are intentionally activities. तो हमें यहाँ पे ये समझना है, जो see और hear होता है ना, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ verbs ऐसी होती हैं जिनमें हमारी इंटेंशन के साथ कोई काम नहीं करते, तो ये उनके एग्जांपल्स हैं। see और जो hear है ना, उसके अंदर हमारी इंटेंशन नहीं होती कुछ काम करने के लिए, तो इसलिए नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। look और listen, ये हमारी इंटेंशन वाली वर्ब्स होती हैं, इसमें हम कोई काम करते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, लुक के दो मीनिंग होते हैं, देखना भी और दिखना भी। जब दिखने की बात करते हैं तब उसमें वो नॉन एक्शन होती है, जब देखने की बात करते हैं तो वो एक्शन होती है, राइट। सो लाइक यू कैन सी सम एग्जांपल्स रिटन हियर। आई सी अ मैन आउटसाइड, मैंने एक व्यक्ति को देखा, इंटेंशनली नहीं देखा। आई हियर ए लॉट ऑफ नॉइज, हियर का मतलब सुनना होता है, बिना इंटेंशन के साथ। ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है। देखो यहाँ पे देखने हैं, जब देखने की तरह यूज कर रहे हैं तो उसमें इंटेंशन होती है, एक्शन होता है वो। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, इंटेंशन है वहां पे, राइट। सो दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज अ एक्शन वर्ब्स, so we can make the present continuous tense of these verbs. Next L part, have. When have shows possession or condition, we should not use it in the present continuous tense. जब ये possession को show करता है, like I can say I have a car, उस समय इसको हम ing वाली फॉर्म में, यानी कि present continuous tense में नहीं यूज करना चाहिए। I have a headache, I'm having a headache, sorry. So in this way you should not use, but we can use have in the present continuous tense in the following cases. When have refers to some arrangement for the future, we are having a party tomorrow. In these sentences, like she's having her bath, he is having his lunch. In these sentences, have has been used in the sense of take. तो जब हम have को take के meaning के लिए यूज करते हैं, तो उस sense में हम have को यूज कर सकते हैं, परंतु अधिकार को शो करने के लिए, कंडीशन को शो करने के लिए जो हम have को यूज करते हैं, तो वो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो वहां पे इनको ing वाली फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज नहीं कर सकते, राइट।
So according to this, you need to fill the exercise number 6 and 7, right? So dear students, now we have come on the next chapter. So I give you a few minutes